हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 9 which is multiplication and division of decimal. So I hope students कि आपको addition और subtraction of decimal it's clarified to you. Now we are focusing on the multiplication and division. So this one is also easy. Now in this case, while we're talking about the multiplication, so you just have to forget about the decimal point. Okay. So how can you have to calculate it? So we have 35.54 by 26. Okay. So in this case, what we have to do, one number is your decimal number and the second one is your whole part. Okay. So just forget about this point. I'll solve here. ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं. For example, 35.54. This is your question and you have to multiply it with 26. So while you multiply it, so your answer is 92404. Okay, the same answer you got here while you putting the decimal, same answer you got here. There is no change. Okay, now you have to consider how many numbers are there after the point. So we count 1 and 2. So this is your simple answer, right? So you have to start your counting from right hand side from the lastest part. 1, 2 from the end one, and you just have to put a point here. That's it. So what you have to do here कि आपने simple multiplication की जो process थी, you are applying here only that. But the single change in your simple multiplication and your decimal multiplication is this कि you have to count the after the decimal part numbers कि how many digits are there. So you count 1 and 2. You just have to apply your numbers from the right hand side. So 1, 2. So here you have to put the decimal here. That's the only thing you have to consider while you're doing a multiplication with the decimal part. Okay, so now this is a decimal where you have a decimal number and a whole part. So now what you have to do when you have to multiply a decimal number with a decimal number. Okay, so now in this case, while you multiplying 58.32 from 0.342, so you simply what you do, you just have to multiply like this. So first we write 5832 multiply it 342. Now you have to write your answer 994,544. Okay, so now in this question, how many numbers are there after the decimal part? 1, 2. Now how many numbers are there after the decimal part? 1, 2, 3. Now you have to add both the numbers together. 2 plus 3, your answer is 5. So how many after how many numbers you have to put a point? After 5 numbers from the right hand side. 1, 2, 3, 4, 5. This is your decimal. While you consider the decimal point, this is your answer. And same procedure we are applying here. But what we have to do here कि हम पूरा आंसर पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ. आप चाहो तो डेसिमल कंसीडर करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट जब हम डेसिमल कंसीडर कर कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा. तो आपको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हियर. You have to count the numbers after the decimal part. If they are, you have to, if you multiply a decimal number with a decimal number, then you have to count both the numbers after the decimal part, add together and just write like this way. Okay, so this is the simplest way I think so for multiplication. अगर आपको multiplication आता है तो, अगर multiplication नहीं आता फिर तो ये difficult लगेगा ही. So 28 multiply by 6, 6 8s are 48, 4 6 2s are 12, 12 plus 4 is 16. ठीक है. Now how many digits are there after the point? Only 1. So 1, and you have to put a point here. That's it. This is your answer. Okay, so you have to do the same process for rest of the questions. Okay, now multiply decimal number by 10, 100,000. ये तो बहुत 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 easy है. ठीक है, जितना easy मैंने इसमें कह दिया उतना ज्यादा easy है. अब आपको क्या करना है, 350.515 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे, 350,515 और एक जीरो लगा दोगे. एक जीरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना था. अगर 100 से करना होता तो 2 जीरो लगाती, 1000 से करना होता तो 3 जीरो लगाती, 10,000 से करना होता तो 4 जीरो लगाती. अब मैं काउंट करूंगी कि मेरे डेसिमल कितने हैं. 1, 2, 3. ओके, सो आई हैव 3 डेसिमल नंबर आफ्टर द पॉइंट. सेम प्रोसेस आई हैव टू अप्लाई हियर. I have to count the counting from the right hand side. 1, 2, 3. So this is your answer, 3505.150. You can also read it like this.
कि 3505.15 ओके. सो यू कैन आस्क. हाँ ठीक है. सो इट मीन्स कि हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको बस ऐसे जीरो लगाना है, फिर पॉइंट कंसिडर करना है, उसके बाद हो जाएगा. या आप ये भी देख सकते हो कि आप अगर ध्यान से देखोगे कि आपका यहाँ पर कितना था, 10 था, तो आपका यहाँ पर एक नंबर पीछे हट गया, मतलब कम होता जाएगा डेसिमल नंबर की तरफ. यहाँ पर 3 थे तो अब यहाँ पर 2 हैं, तो 2 आप यहाँ से हटा दीजिए, तो आपका 5023 आंसर हो जाएगा 0.5 इस तरीके से. बट इस वाले में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला इजी बता दिया एक तरीका कि आप जीरो लगा दें मल्टीप्लीकेशन में, फिर पॉइंट पुट कर दें, कोई गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. नाउ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 170 लिखोगे और पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे. ठीक है. एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 6460000 और यहाँ पर आपको 2 लगाने हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे. तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व योर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड अ होल नंबर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर ऑलवेज रिमेन द सेम. यानी कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर हम कोई भी, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि उनका ऑर्डर कोई भी हो, कि अगर मैं बोलूँ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो यहाँ पे कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा. सो वी आर अप्लाइंग हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Then next we have the product of two decimal number does not change by changing the order of the number. The same thing you are writing here. The product of 1 and a decimal number is equal to the decimal fraction. 1 और 0 को तो आप हर किसी के लिए मल्टीप्लिकेशन के वक्त पर इस प्रॉपर्टी को ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि आप 1 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर है ना आपका, यू हैव टू जस्ट राइट द एज इट इज दैट नंबर ओनली. ओके. कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा. और जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो डेसिमल वाला हो ना हो, सो व्हाट इज द आंसर योर? योर आंसर इज 0. ओके. नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि 0.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, तो जो इक्वल भी हो तो ऑब्वियसली 0.5 ही होगा. यहाँ पर क्या नंबर मिसिंग है? 5.8 है. 5.8 है तो हमें यहाँ पे लिखना है 3.6. 1 से मैं 2.4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो माय आंसर विल बी 2.4. 0 को 4.58 से करूंगी तो माय आंसर इज only 0. So you just have to complete this exercise. Okay. Next we have division of decimal numbers. So division of decimal numbers में same thing you have to apply here. But the thing is कि कहीं कहीं पर आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका डेसिमल है या नहीं. बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करना. आपका यहाँ पर है 835 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर हम 5 लेंगे क्योंकि ये 10 तो बड़ा हो जाएगा. देन यहाँ 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 5 आएगा और देन यहाँ पे 35. तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 6 7. अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव आफ्टर द पॉइंट 2. सो 1 2. तो आप अपना आंसर देखोगे तो यही आपका आंसर है 1.76. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस बस इतनी है कि जब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाए नॉर्मल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और वी जस्ट हैव टू पुट लाइक दैट वे इन आवर आंसर, जो भी आपका आएगा. ठीक है. नाउ डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. तो अगेन कोई भी घबराने की बात नहीं है आपके लिए. आपको सेम चीज करनी है कि यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट द डेसिमल नंबर और डेसिमल पॉइंट, और यू सिंपली सॉल्व योर क्वेश्चन. आफ्टर दैट व्हाट यू विल गेट कि जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया 172.8 डिवाइडेड बाय 0.114. So divisor 0.114 has 3 places of decimal. So we multiply, divided and divisor by both by 3 indices of 10. So यहाँ पर हमने फर्दर इसे कन्वर्ट कर लिया है अपने नॉर्मल में. ठीक है. विदाउट पॉइंट के सेंस में, और फिर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1200. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ना करते तो क्या होता? तब भी आपका आंसर यही आता स्टूडेंट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर ही देती हूँ, चलो एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए कि चेंज करना जरूरी है भी या नहीं. अब मैं यहाँ पे जब सॉल्व करूंगी तो 144 ही मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि डबल तो इसका ज्यादा हो जाएगा. 2 - 4 इज नॉट पॉसिबल. 12 - 4 इज 8. 6 - 4 इज 2. एंड यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पर आएगा ये. अब आई थिंक सो 2 मल्टी, हाँ, तो 288 हमारा यहाँ पर आ जाएगा. तो हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस. तो हमारा आंसर क्या आएगा? सिर्फ 12 आएगा आंसर.
ठीक है, अब जब 12 हमारा आंसर आएगा तो 1 and 3 यानी 4, तो 4 डेसिमल वी हैव टू अप्लाई हियर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है इनका 1 2 3 4 पॉइंट, ये आपका आंसर आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, डेसिमल हटाओगे, तो कुछ सेंस तो इसका यही बनेगा। तो आप ये वाला प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हो, पर अगर आप देखोगे तो एंड में आपका आंसर इसी सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो बट अप्लाई ये करोगे तो इजी होगा। अब हमें क्या करना है, 12.5 डिवाइडेड बाय 4 करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी नहीं है हमारी, देखते ही पता चल रहा है। हम यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसे 10 कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 10 से। नहीं, यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12। आपका आंसर आएगा 3 2 देन 1 2, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाओगे 2 और फिर आएगा आपका 5, तो 0.5 यहाँ पे था, 1 पॉइंट यहाँ पे, आपका आंसर आएगा 31.25, ठीक है। नाउ डिवाइडेड, तो आप दोनों यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो, ठीक है। नाउ कैसे करोगे आप इसको, आप आएगा आपका 204 कन्वर्ट हो जाएगा ये उसके बाद, और ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस राइटिंग है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, तो आपको 240 को 20 से डिवाइड करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय 10 100 एंड 1000, तो ये बहुत ईजी है अगेन, कि आपका जो डेसिमल है, कि जितने जीरोज आपके पास आएंगे वो आपको एक प्लेस वैल्यू आगे बढ़ा देनी है, ठीक है। सो 136.35 को आपको डिवाइड करना है 10 से, इसका मतलब ये कि जो ये पॉइंट यहाँ पर है ना, ये एक प्लेस आगे चला जाएगा, 3 सेट के कहाँ पे चला जाएगा, 6 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 13.635। अब हमें 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो हमें 2 प्लेस आगे जाना होगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि यहाँ पर 4.2528 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। नाउ डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि अगेन अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 से इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है कि 726.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये है हमारा, यहाँ पर हमने डेसिमल हटाया होगा अपना। आप सिंपली देखोगे, जब आप 5 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कैसे करा, यहाँ पर आप सिंपली देखोगे, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, करके दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। यहाँ पर आपने 1 लिया 7 के लिए, फिर आपने 4 लिया, यहाँ पर 22 आया इसलिए 4, 26 के लिए आप 25 लोगे, फिर यहाँ पर 15 और आपका क्रॉस हो जाएगा, तो आपका एक तरीके से आंसर क्या है 1 4 5 3। अब आप इसे डिवाइड किससे कर रहे थे, अब यहाँ पर आप ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो आप देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, 10 से डिवाइड करना है, इट मीन्स 0 पॉइंट, क्योंकि 7 से आगे कहाँ जाएगा, 2 पे ही जाएगा, तो 2 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1000, तो यहाँ पे 2 प्लेस आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.875, ठीक है। नाउ डिवाइड 6.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पहले 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करा इसे, तो यहाँ पर आया हमारा 3 4, कितने जीरो आफ्टर, कितने नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल इज 1, ये वाला जीरो भी हमारा यहीं आएगा, ठीक है। तो ये 200 हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पे 100 होगा ना, 34.0, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो जब आप 300 से डिवाइड करो तो आप इसे इस तरीके से देखो, 0.3 है, डिवाइडेड बाय 300 करना है, तो आप यहाँ पे पॉइंट डालोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करोगे, तो कितने जीरो आ गए, 2 3, 3 से 3 गया, अब आपका यहाँ पर आंसर सिर्फ 1 है, तो आपको यू हैव टू अप्लाई 3 zeros आर देयर, सो 1 0 0, तो ये 0.001 आपका आंसर आ जाएगा। Now the same thing which we applying in our previous chapter, the word problems. So 2.40 meter of cloth is needed for a shirt. How much cloth will be needed for 32 shirts? So what you have to do, you have to multiply 2.40 with 32. So our answer is 76.8 meter. Next, if 1 kg of rice cost is 24.5, then how much will cost for 4.5 kg? So 2 4 5 multiply by 45. 5 5s are 25, 2, 5 4s are 20, 22, 2, 5 4s 2, 10, 12,
22, 4 4 is 16, 18, 1, 2, 4, 8, 9. So 5, 2, 10, 1, 9 plus 1, 11. How many points are there after the decimal part? 1, 2. So 1, 2. Apply you here. Your answer is 110.25. Okay. Next we have a generator consumes 3.125 liter of diesel per hour. How much diesel is required to run the generator for 15 hours? So again, what you have to do, you have to multiply 3125 with 15. Now it's your work. Okay. It's totally up to you. You have to solve it and write your answer here. Now, next, take the correct option. To multiply a decimal by 100, the decimal point in the multiplicand is shifted to the 3 places, 2 places, 4 places, 1 places. So, first we have to check it how many zeros are there. 2. So, 2 places. The product of decimal number and a whole number multiplied by in any other always change the order, does not change, remain same. To divide a decimal by 1000, move the decimal point 3. So in same way, you have to answer the rest of the questions. Or I hope so, student, this chapter is clear to you. Now we will meet in our next class with a new chapter. So till that, practice enough questions related to this chapter and make sure you don't have any kind of doubt. Okay. Bye bye, students.